دنیا کی معیشت کے اوپر مختلف انداز سے اثرات مرتب ہوئے۔ میں یہ حکومت اور پچھلی حکومت دونوں یہ کہتے رہے اور اس سے پہلے کی حکومتیں کہ پاکستان کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہیے، اس سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ کیسے صرف کہنے سے پیر پر کھڑا ہو جائے گا۔ ذخائر ایسے کوئی تیل کے ذخائر پاکستان میں نہیں ہے، مگر زمین موجود ہے، سونا موجود ہے، پاکستان کا جو عوام ہے وہ سونا ہے، وہ سب موجود ہے۔ تو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور پچھلے سال 8 مہینے پچھلی حکومت کے اور 4 مہینے نئی حکومت کے جو گروتھ کے فگرز ہیں وہ سیٹ بیکس ہوئے، مگر 5.97 تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اس کا مطلب پہنچ سکتے ہیں نا، کیپیسٹی ہے، کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہی فگرز کے پاس واپس جانا پڑے گا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں گے۔ یہ جو بیلنس ہے اس کو بھی ہمیں کوشش کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا مناسب ہوا، اس کے نتیجے میں دوسرے لینڈرز بھی آگے بڑھے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دوست ممالک نے بھی فنڈز رول اوور کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ مہنگائی آپ واقف ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مگر کمر توڑ مہنگائی کے لیے حکومت ہی محنت کرے گی، اور یوٹیلیٹیز انشاءاللہ سولر کی طرف جیسے جائیں گے تو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی۔ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ بھی پریشان کن یوں ہے کہ ہر چیز کی مہنگائی اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا، اور لانگ ٹرم اعتبار سے کنٹینویشن آف پالیسیز، جس چیمبر کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں تو ہر چیمبر کے لوگ، ہر انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز کی کنٹینویشن ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر حکومتیں پاکستان میں بدلے بھی تو میری درخواست یہ ہے کہ پالیسیز کی کنٹینویشن طے کر لینی چاہیے کہ یہ کنٹینیو ہے، ورنہ انویسٹر نہیں آئے گا۔ انویسٹر آئے گا بھاگے گا، آئے گا بھاگے گا، تو یہ کیفیت پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بھی توجہ دلائی تھی تحریری طور پر، اور پچھلی گورنمنٹ میں زبانی طور پر توجہ دلاتا تھا۔ میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور میڈیا اگر پریشر محسوس کرے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں اس حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، ساری حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں، آنے والی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا نے بھی ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک عجیب، کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو اوزار ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اوزار کیا ہے؟ پکڑ لو، اٹھا لو، اس کو زبردستی سمجھا دو، اس سے نہیں کام چلے گا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا، تو گوٹنبرگ بائبل اور گوٹنبرگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سونار تھا جس نے بنایا تھا، اور 13ویں اور 14ویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا، کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ خرابہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں۔ وہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا بہترین ذریعہ، وہ سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ، اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی، یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا۔ ساری جھگڑے انسانوں میں، خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب، اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، اور جھگڑے، قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا، اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا، ایک زمانے میں ہم نے 1-2 سال کے لیے بند بھی کیا، اب بند کریں، اس سے اتنا فائنینشل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی۔ میں نے پچھلے سال ہال کے اندر 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی۔ ایک تو غیبت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو، غیبت۔ اچھا، غیبت کیا کیفیت ہے کہ یہاں کی گفتگو وہاں سنا دی، غیبت اسی کو کہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سنا دی۔ اور مسلمان سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہے کہ جو پچھلے 1400 سال سے قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا، 1400 سال سے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दुनिया के आगे वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो हम वाकिफ़ हैं इस बात से, लिहाजा हमें भी इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। और मैंने पिछले दिनों मिसाल भी दी, मगर अब मुझे ख़तरा इस बात का भी है कि प्राइवेसी का आंसर अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मगर ये जनरेशन वो देखते हुए उसको तकलीफ होगी, नई जनरेशन आएगी वो परवाह भी नहीं करेगी कि किसकी प्राइवेसी एनक्रोच हो गई, प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। तो ग़ीबत से परहेज़ करें। कौम बनती है इत्तेहाद के साथ, और कायदे-ए-आज़म ने जो इस इत्तेहाद की बात की वो मैं आखिर में आपके सामने वो भी रखूंगा। तो कौम बनती है। इसी तरह से फेक न्यूज़, अल्लाह ताला ने कहा कि तस्दीक करो। हमारे यहाँ फेक न्यूज़ हम खूब बरमला चलाते हैं। अच्छा, और दुनिया परेशान है, सिर्फ आप नहीं, सारी दुनिया परेशान है इन दोनों चीज़ों से। तो वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं जो 14 से 18 साल के बच्चे, इसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक अमेरिकन और बहुत सारे रिसालों ने तहकीक करके बताया, तो उनको तैयार करते हैं कि ग़ीबत से किस तरह से परहेज़ करो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल करो, और उसके साथ साथ फेक न्यूज़ को समझो। तो तैयार करना पड़ेगा आपको। ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता था। कोई मुझे कहता था जी मेरा दोस्त के जी मैंने उसकी बात टेप कर ली, मैं कहता हूँ मेरे कानों के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें मेरे कानों के लिए नहीं है। मैं जिस अंदाज से अपने दोस्तों से गुफ्तगू करता हूँ वो वही अंदाज मेरी माँ को सुना दिया जाए तो वो कहेगी, मरहुमा वो कहती कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, अगर उस अंदाज को सुना दिया जाए। तो जो चीज़ जिसके कानों के लिए है फ़िलहाल उसी पर हमें चलना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो, वरना बाहर से आने वाले लोग भी क्या बात करेंगे अगर उनको इस बात का ख़तरा होगा। मैं फॉरेन अफेयर्स की तरफ आना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती बड़ी मुस्तहकम है, और जो बात हम बार बार कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, और हम ये कहते हैं कि ये पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। और ये जो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर दोस्तियाँ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ होती हैं, मैं समझता हूँ हमारी चाइना की दोस्ती जो है वो असल दोस्ती है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसके अंदर हर अंदाज से तरक्की, पहले एनर्जी सेक्टर के अंदर कॉपरेशन हुआ, अब ट्रेड के हवाले से, ग्वादर के डेवलपमेंट के हवाले से मामला चल रहा है। और ग्वादर पोर्ट की अहमियत का आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपकी वजह से आपने ये जिम्मेदारी दी। मैं छोटा आदमी एक बड़े ओहदे पर हूँ, मगर जहाँ भी मैं गया, जितने सुदूर से, सेंट्रल एशिया के सुदूर से मिला, सबको इतनी बेचैनी है कि ग्वादर पोर्ट फंक्शनल हो जाए, और सबको इतनी बेचैनी है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो तो उसके रास्ते हमारी तिजारत होगी। तो चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन और उनका पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम और उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ हमारी दोस्ती अच्छी है। इसी के साथ ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे अमेरिका ताल्लुकात इंशाअल्लाह अब बेहतर भी हो रहे हैं, बेहतर होते चले जाएंगे। 50 की दहाई से ये ताल्लुकात हैं, बड़ी करीबी दोस्ती थी, ऊंच नीच इसके अंदर होता रहा है, मगर ये कि हम ये समझते हैं कि हमारी गुड्स का सबसे बड़ी मार्केट भी अमेरिका है। लिहाजा हम अपनी डिग्निटी के साथ ये चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ये ताल्लुकात बेहतर होते जाएं। और जो हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है, मैं उसको सराहता हूँ कि ये अच्छा काम है। मैं यूरोप के अंदर GSP प्लस के हवाले से और यूरोप के सारे ममालिक के हवाले से, हमने यूक्रेन के हवाले से, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हम अमन चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स और यूरोप के सारे ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क, हमारी ताल्लुकात 1400 साल पुराने, नए नहीं। हमारे हर ज़रूरत के वक्त सऊदी अरब हमारे काम आया। हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत अपनी हिफाजत समझते हैं, अपनी जान कुर्बान करेंगे। और जिस अंदाज से सऊदी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ रहा है, तो हम समझते हैं हमारे मज़दूर भी वहाँ जाकर मेहनत करते हैं, तो हम ये समझते हैं ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते चले जाएंगे। तुर्की के साथ देरीना ताल्लुक़ बड़ा पुराना, 1880 की दहाई के अंदर मुझे याद है कि जब वहाँ ज़लज़ला आया और हमला हुआ तो यहाँ से लोग वहाँ तुर्किया की दफ़ा के लिए भी तैयार हुए और एड भी भेजा करते थे। तो वो ताल्लुकात भी हमारे मज़ीद मुस्तहकम, रोज़ बरोज़ मुस्तहकम होते जाते हैं। रियल फ्रेंडशिप। इसी तरह से अमारात के साथ भी जिन्होंने अपने फंड्स भी रोल ओवर किए, सऊदी अरब ने भी किए, मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी हमारे मज़दूर भी वहाँ काम करते हैं। एंड गुड रिलेशनशिप्स। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का क्लियर पोजीशन ये है कि अमन हम चाहते हैं,
बड़े हमारे भाई बड़ी मुश्किलात से 40 साल मुश्किलात का शिकार रहे हैं। ये तो आपकी फराखदिली है कि आपने भी उनकी मदद ऐसे की कि 40 लाख महाजरीन 40 साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि इनको हटाया जाए, वापस भेजा जाए। और इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में रेफ्यूजीज को आने नहीं देते, रंग और नस्ल देखकर आने देते हैं। तो आपका तो दिल बड़ा है, ये आपकी ताकत है, ये दुनिया के लिए नसीहत है कि पाकिस्तान के लोग कितने मुखय्यर हैं और कितना इनका अच्छा किरदार है। तो अफगानिस्तान में हम अमन चाहते हैं और ये भी हम समझते हैं जो इस हुकूमत ने, तालिबान की हुकूमत ने ये कहा था कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, इस पर हम चाहते हैं कि वो भी सब कायम रहे, म्यूचुअल इंटरफेरेंस ना हो और ये कि वहाँ अमन हो, बच्चियों की तालीम का एहतमाम हो और एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत भी बन जाए तो अच्छा है। जल्दी दुनिया के अंदर रिकग्निशन भी होगा। FATF से इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे, बड़ी मेहनत की है आपने और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने और जिन हुकूमतों ने, सब ने मेहनत की। हिंदुस्तान का मामला बड़ा अनोखा सा है। कश्मीर आ जाए जिक्र में तो बहुत मुनासिब कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान इससे अलग नहीं होगा। इस बात से कश्मीरियों के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत उसमें वहाँ इंसाफ हो, वहाँ जुल्म और ज़्यादती ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, मगर कश्मीर एक प्रायोरिटी है जिसको समझ लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक और कैफियत पैदा हुई जो बड़ी ख़तरनाक है। हम मुनाफरत की दुनिया से निकले हैं। हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी जिस मुनाफरत की बुनियाद पर थी, एक्सट्रीमिज्म था, उससे हम निकले। हम सियासी पोलराइजेशन में तो आए हैं मगर वैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से निकले हैं। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्व वाली कैफियत है उससे इस्लामोफोबिया बढ़ा। आपने देखा लेस्टरशायर के अंदर क्या राइट्स हुए, सिर्फ यही नहीं, वो एक्सपोर्टेड इस्लामोफोबिया इंडिया से। आपने देखा कि जो बुलडोजर मुसलमानों के घरों को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो सिंबॉलिक अंदाज से न्यू जर्सी के अंदर परेड के अंदर भी वो आया। तो ये इस्लामोफोबिया एक्सपोर्ट हो रहा है और बड़ा खतरनाक है। ये नफरतें 30-30, 40-40 साल चलती हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो इंडिया तो आग से खेल रहा है। हम समझते हैं कि हम यही कह सकते हैं कि ना करो, क्योंकि हमारे ऊपर असर होता है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी आएंगे इस बात के। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के में जो पाकिस्तान ने और दोस्त ममालिक ने कोशिश की कि इस्लामोफोबिया डे के हवाले से दुनिया को याद दहानी के लिए कि इस्लामोफोबिया ये नफ़रतें हैं जिसने यूरोप में भी जंगें इस्लामोफोबिया के हवाले से नहीं, आपस की जंगें भी फोबियाज़ के हवाले से हुई, तो इस्लामोफोबिया को रेजिस्ट कर लिया जाए। मैं चंद बातों का और जिक्र कर दूं। एक तो ये मैं समझता हूं कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं, सब कहते हैं कि है, मगर हम उसको काबू पाने में कोई कसर रखते हैं। वो कसर ये है कि करप्शन के हवाले से हज़रत उमर से बात को शुरू करता हूं कि हज़रत उमर के ऊपर किसी शख्स ने ये कहा कि जी आपका ये लबादा जो है ये एक चादर से नहीं 2 चादरों से बना है, ये कहाँ से आई? ये नहीं कहा कि मैं साबित करता हूं कि कहाँ से आई, ये कहा कि कहाँ से आई, और हज़रत उमर ने जवाब दिया। तो फाइनेंशियल इश्यूज पर दुनिया का अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, इंग्लैंड का स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट 2010 और 2016 का, ये सब ये कहते हैं कि इस फाइनेंशियल करप्शन के अंदर ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव कि कहाँ से आया, ये उसके ऊपर है जिसके पास एसेट्स हों। तो ये नैब को मजबूत करने की ज़रूरत है, पोलिटिसाइजेशन रोकने की ज़रूरत है। ये कि ये इस्तेमाल हो एज अ टूल लोगों को परेशान करने के लिए, इसको रोकना ज़रूरी है। मगर ये कि क्या आपके यहाँ कोई करप्शन रोकने के एतबार से एक अच्छा आपका इसमें तजुर्बा हुआ, पॉलिटिक्स से हटा लें इसको। मैं अब आता हूँ आखिरी चंद बातों पर। कायद आज़म ने ये कहा और इसी सीक्वेंस में कहा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। कायद आज़म ने कहा इत्तेहाद, पहले इत्तेहाद का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा डिसिप्लिन, और फिर तीसरे उन्होंने कहा कि ईमान और इस्तेहकाम आपको हो, मुस्तहकम बिलीफ हो आपको। तो पहले बात की इत्तेहाद की। आज सियासत में वो पोलराइजेशन में देख रहा हूं। इत्तेहाद कायद आज़म ने सिर्फ अवाम के लिए कहा था कि तुम जुड़ जाओ। ये इत्तेहाद की नसीहत तो लीडरान कौम
को मुत्तहिद करेंगे तो कौम मुत्तहिद होगी। ये सिर्फ हम लफाजी करते रहे, नहीं कर, कौम करेगी क्या? तो कौम करेगी क्या? परेशानी रहेगी ना। दुनिया के आगे यही देखते रहेंगे, दुनिया देखती रहेगी। आपको याद है एक ज़माने में किसी एक और मुल्क हमारा जो हिस्सा था, वहाँ पर जब आपस में अफरा तफरी थी तो दुनिया कहती थी बास्केट केस है। तो लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी है कि पोलराइजेशन ख़त्म हो। इसके लिए लीडरान इस बात के ऊपर मेहनत करें। और ये पोलराइजेशन ख़त्म कैसे होगा? ये जो कायदे आज़म ने कहा था इत्तेहाद, डिसिप्लिन तो बाद में आएगा ना, इत्तेहाद पैदा करें। और कौम के 75 साल जिस अंदाज से गुजरे तो उसमें जो हमारी गलतियां हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो इसके ख़त्म कैसे होगा? यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये मांग रहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ये मांग रहती है कि जी नहीं हुए। और लोग कहते हैं कि 1970 का इलेक्शन हुआ था। मैंने इस पार्लियामेंट की मदद से, यही आपने वो कमेटी बनाई थी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, जिसका चेयरमैन मैं था, मुत्तफिका हमने मशवरा दिया, इसी पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि ईवीएम्स एक काबिल अमल चीज़ है, इसको टेस्ट किया जाए, ट्राई किया जाए और इसको सही कर इसको इस्तेमाल किया जाए। इसी पार्लियामेंट के अंदर वो रिपोर्ट आई और मुत्तफिका रिपोर्ट थी कंसेंसस के साथ। क्या है ईवीएम? ये था कि बटन दबाने से काउंट हो जाए और कागज का बैलेट भी चलेगा। तो कागज का बैलेट भी था और बटन भी था। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये नहीं कि इसको हम टालते रहे, ये हुकूमत अगली हुकूमत पर टाले, वो हुकूमत अगली हुकूमत पर टाले। ये इस अंदाज से तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा जब आप हर इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। हर शख्स, हर पार्टी जो हारेगी वो कहेगी कि जी इंसाफ नहीं हुआ यहाँ पर। दूसरी चीज मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी का जिक्र भी जरूरी है कि उनसे 30 अरब डॉलर आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनको वोटिंग राइट्स के एतबार से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि है, हम भी समझते हैं कि है, आप भी जानते हैं कि है। ये वो नहीं है जो डुअल नेशनल्स हैं। डुअल नेशनल्स तो इसमें से बहुत छोटी सी 5 या 10% लोग होंगे, बाकी वो मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं, मेहनत मजदूरी कर रकम पाकिस्तान भेजते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपने भी कहा, पार्लियामेंट ने भी कहा कि उनको वोटिंग का हक मिले। आप एहतियात कर लें, इंश्योर कर लें कि ये इसके अंदर गड़बड़ और धांधली ना हो, मगर ये राइट देना पड़ेगा। मेहनत कब करेंगे? कुछ लोगों ने जिसको बारिश में छतरी की जरूरत होती है, हर शख्स छतरी लेकर थोड़ी फिरता है। जिस मुल्क को जरूरत जिस चीज की होगी वो अपनाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस चीज को अपनाया, कामयाबी के साथ अपनाया। जिनको नहीं जरूरत है वो नहीं उसको अपनाए। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि लिहाजा ये इंतखाब का साल है और इसके अंदर अगर पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन को हल कर ले। पूरा साल भी बाकी है, आपस में गुफ्तगू कर अगर महीनों का फर्क है तो इसके अंदर बैठकर बातचीत कर इसको एक दूसरे को मुतमईन कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। जल्दी हो जाए, अच्छा, मेरी राय अच्छा है, मगर ये तो आप लोग तय करेंगे ना, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूं अपने दोस्तों को, मगर ये आप तय करें। पोलराइजेशन खुदा के वास्ते इस मुल्क में खत्म करें। मुनासिब है आप डिस्कस करें, मगर ये कि जरूरत है कि पोलराइजेशन खत्म करें। एक चीज की अहमियत है, उस अहमियत को जानिए और पहचानिए। जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन खत्म नहीं होते। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के ऊपर। ये उम्मीद है कि ये पाकिस्तान सोना है, इसकी मट्टी सोना है, इसके लोग सोना है। और कायदे आजम ने, और आप फिक्र करते हैं गरीबों की, आप मेहनत करते हैं, लिहाजा ये डिजर्व करता है मुल्क कि ये अच्छे रास्तों को तय करे। और इसी मुनासबत से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं रूमी का, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का हवाला देकर कि वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिदा, जिससे अल्लामा इकबाल ने भी रास्ता तलाश किया। मैं समझता हूं उसने 8 मदारिज इन मोहब्बतों के हवाले से उनका जिक्र किया जो पाकिस्तान पर पूरे मौजू उतरते हैं। मैं उन 8 मदारिज का आपसे जिक्र करता हूं। पहले रूमी कहता है कि अपने आप से मोहब्बत करो, अपने दिल का शीशा साफ करो ताकि तुम्हारे अंदर जो चीज आए वो नफरतों से हट कर आए। तो दिल का शीशा साफ करो। रूमी कहता है अपने आप से मोहब्बत करो। फिर रूमी कहता है कि अपने घर वालों से और खानदान से मोहब्बत करो, दिल बड़ा करो, लोगों को दरगुजर करो। फिर तीसरा दर्जा वो कहता है अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। और क्या खूबसूरत पाकिस्तान है कि जनाब अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करता है, मुश्किलात के अंदर वो निकलता है, हम लोग निकलते हैं और मदद करते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जलजला हो चाहे जो कुछ भी हो, हम अब निकल कर मेहनत करते हैं। फिर रूमी कहता है अपने वतन से मोहब्बत करो। ये हो नहीं सकता कि वतन बन जाए,
بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے. صرف وطن بنتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے ہیں اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا. وطن بنتا ہے انسانوں سے. تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو. پھر آگے بڑھتا ہے. اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو. جو آپ قتل و غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا تباہی کا انبار, جو اب جنگیں چل رہی ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے, خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے, نباتات, پھول, پرندے, ان سے محبت کرو. مگر اللہ کی کریشن جو ہے, اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر, پانی, بادل, سب چیزیں ہیں. اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو. تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی. اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا, ہم بھی فدا ہیں, وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے. بڑی بات ہے. اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں, 8واں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر, محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھولیں گے. تو میرے دوستوں, بھائیوں, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی, آپ نے میری بات سنی. مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر کر, اتحاد کر کر, قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر, اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں, تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا. بہت شکریہ خواتین و حضرات, ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں, آپ سب کا شکریہ موجودگی کا.